सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पीस। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पीस। कहाँ तुझ प्रभ बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तुम्हारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधार। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कौन नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह। धन धन दसां पातशाह जी की जागदी जोत। ताकत चबर छतर के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी किरपा द्वारा सत संगत का अमोलक समा चल रहा है। आप भागां वाले हो। गुरु जी दे बख्शे हुए उद्यम दे नाल गुरु जी दी ही बख्शी हुई प्रेरणा का सदका कम्मां धंधियां नूं छड्ड के आलस आराम नूं त्याग के सतगुरां दे सचखंडी दरबार विच सज के सरवण भगती कर रहे हैं। गुरु सवारे गुरु करदे महान कीर्तनीय जिन्हां तो आप जी ने गुरु का जस सरवण करके आनंद माणिया। जिन्ना समा होर सतगुर बख्शदे ने शरधा भावना दे नाल गुरु जी के बख्शे हुए बचन उपदेश गुरु जी का अमर इतिहास सरवण करिए। मेहर करन सतगुर साडा ये समा सफला हो जाए। 2 दिन तो तुहाडे चरनां विच बेनतियां रूप विचार चल रही है। जो सानू रोग हैं उन्हां दा ख्याल करिए जिन्हां रोगां दे असीं ग्रसे होए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की महान बाणी का यह बचन कि जो जो दिसै सो सो रोगी। बहुत वचन वरत रहे ने। इसे बचन नूं फिर बचन किया संसार रोगी। सारा सृष्टि विच आ गई। चारे खाणियां विच आ गईयां संसार दे। अंडज जेरज सेतज उत्पुज। कुछ जीव अंडिया तो पैदा होंदे ने, कुछ मास तो पैदा होंदे ने,
ਕੁਝ ਸੇਤ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤ ਭੋਜ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਤ ਭੋਜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਤ ਭੋਜ ਹੈ? ਉਤ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦਾ, ਭੁਜ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਹਾਂ ਦਾ, ਭੁਜਾਂ ਬਾਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਤ ਭੁਜ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਦਰਖਤ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ, ਪੱਥਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਪੱਥਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਗਿਣੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ? ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗਣਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਧੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਏ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਮਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ? 3 ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਲੋ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੀ। ਨੰਬਰ 2 ਮੋਹ ਉਪਜੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ, ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮਾਪ ਨਾ ਮਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਸਾ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਭਾਉ ਦੂਜੇ ਲਾਇਆ ਭੱਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬੜੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਹਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੇ ਵਿਆਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਦੇ ਹੈ, 3-4 ਮਾਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜਮ ਮੁੰਦੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੰਨਾ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ लो, सर्व सोइन की लंका होती जी 10 किला ही सोने का। किला भी कोई छोटा नहीं सी, 7 दरवाजे सी उस किले दे, एडा वड्डा किला सी। फिर राज भाग 3 लोकां ते राज। ये ना कहो किते धरती का राजा सी रावण, उन्हें राक्षसां नूं भी जित लिया सी, देवतियां नूं इंद्र नूं भी जित लिया सी। फिर औलाद देख लो किन्नी कि सी। इत्थे तो पंजाबीओ बैठे हैं, बड़ी घमेर चढ़ी भी हुंदी है उत्थे सानू, हो जाण दे नियाणियां नूं बड़े फेर देखूंगा तैनूं, अज को सतनाम। तू होर नूं की देखेगा, पहला अपने नियाणियां नूं आप देखी की करदे। ओहदा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, एडा परिवार, इन्ना धनी। एक होर गल है, ਉਹਦੇ वर्गा विद्वान जमना औखा है। विद्या इन्नी सी, 4 वेद 6 शास्त्रां दा कथावाचक सी पंडित रावण। थोड़ा एक भुलेखा होर दूर करने की कोशिश करा कि लंका उन्हें बनाई नहीं सी, किते समझो कि बनाई है। ये पंडित सी, कथा करन जांदा सी। जिमें साडे गुरमुख प्यारे गुरु के वजीर जाते नहीं, जो तुसी कोठी बनाने हो मुहूर्त करना, विश्वकर्मा जी ने लंका बनाई है गुरमुखो। समुद्र च क्यों बनाई सी? कि विष्णु भगवान नूं भेटा करनी है, गिफ्ट देनी है। विश्वकर्मा जी ने बनाई है लंका, इनू बुला लिया मुहूर्त करन नूं, भी तू अरदास कर, मुहूर्त कर, जिमें आपां मुहूर्त करदे। इन्हें वेद मंत्र उचारे, पंडित सी बहुत वड्डा। वो विश्वकर्मा जी हो गए खुश, कहंदे पंडित जी मंगो की मंगना, दसो की दक्षिणा लेनी है, शरधावान कहे दने। ते गुरमुख प्यारे हो, ये कहना नहीं जो मर्जी दे दो। विश्वकर्मा जी कहते नहीं। इन्हें मंगया कि कहते जे मेरी मर्जी की दक्षिणा देनी है, निकल बाहर लंका मैनू दे। अज को सतनाम, होर इहदे प्यो ने नहीं सी बनाई लंका। ये ऐस हेरा फेरी नाल जद चातर इन्ना सी ना अकल वाला, सियाणे सुनते हो कि गुरु नानक नूं भी इहदी चतराई बाणी विच मननी पई है। रावण पढ़ते हो ना, रामकली का शब्द पढ़ लिया करो। जिन सीता आंदी डौरू वाए, उथे दी चतराई दस रहे ने गुरु नानक दे। गल्लां बातां तां असीं सुणदे बहुत हैं, पर सियाणे बैठे तुसी। भगवान रामचंद्र जी दी घर वाली नूं चकना कोई सखाली काम नहीं सी। दशरथ दे पुत्र त्रेते दे अवतार, ये कह देना सीता चक लियांदी है तो सखाला काम है? नहीं, सखाला नहीं सी। पर इन्नी अकल वरती ना गुरमुखो, ना फौज लेके गया, ना जंग कीता, बस साधु बन के चले गए। डम कटौरू बजाउंदा भीख मंगण जोगी। ये गुरमुख प्यारे नासक का जिक्र है। कोई थोड़े च फौजी बैठा होना, नासक बड़ी छावनी है वड्डी उत्थे हिंदुस्तान दी। नासक बहुता समा रामचंद्र जी ने बनवास का नासक कटिया। ये नासक तो है नहीं सी उदों। पंचवटी उत्थे ही वो स्थान है जिथों सीता जी नूं चक्या गया। ते नासक का नाम तुहानूं पता ही है, काहते पिया होना। नासक कहने नक नूं,
अंग्रेजी वाले तुसी नोज कहने हो, पंजाबी च तो नहीं भुल गए इहनूं की कहने हो? भुलो ना, मैं आए दिन बेनती करदा अपनी भाषा ना भुल। पंजाबी च जे नहीं याद मैं याद करा देना, हट जा नहीं तेरिया नासा भन दूंगा। को सतनाम, ये अपना पंजाबी का शब्द। नासिक, उथे लक्ष्मण ने स्वरूप नखां दा नक वढ़िया सी, वो नक वढ़न करके उस शहर का नाम नासिक है, उथे वढ़िया सी। उथों चक्की सी माता सीता जी। चक्की किवें है? तो मिथिहास असी क्यों कहना किसी नूं गलत है, तो सब मिथोलॉजी, पर आपां ने नहीं कहना, आपां कहण जोगे रहे नहीं। सियाणे सुनियो, सट ना मन्नियो कोई। आपां दूजियां नूं गलत कहण लगे क्यों नहीं रहे उन्हां जोगे, आपां अपने सच्चे इतिहास नूं भी मनण तो मुनकर हो गए। अज के आखो सत, साडा तो एक एक अखर सच है, असी ओहदी विरोधता करते फिरदे, अंमृतधारी करते फिरदे, किरपाना उपर नूं पाईआं होईआं। अंमृतधारी सच की विरोधता कर रहे। थोड़े नोट्स विच लियाउण लगे हैं, वो कर नहीं रहे, उन्हां तो कराया जा रहा है। अज के आखो सत, पिछे उन्हां दे शक्ति है, लोभ विच फसे हुए। उथे गुरमुख प्यारिओ, जोगी बन के गया सी, इन्नी चतराई। वो मिर्ग आया, तुसी तो घर बैठे रमैन देख लेने हो, सन तो जद पढ़ाई है बड़ा औखा सी। मिर्ग आया, कहने सियोने का मिर्ग, इनू समझियो, सियोने का मिर्ग बन सकता है, मिट्टी का बना लो, लोहे का बना लो, पर वो किसी ड्राइंग रूम विच रखिया जा सकता है। सियोने का मिर्ग नठदा नहीं होंदा। के आखो सतनाम, कोई टैक्नीकल पॉइंट लिया करो इतिहास विच। मिट्टी का मिर्ग बन जूगा, नठू किथे हो? तो अजकल का तो जमाना है नहीं भी आटोमैटिक सैल पा के उहदे विच मोटर रखती होनी है कोई। ये तो हुण दीयां गल्लां ने, ये सब मैथोलॉजी है। एक गया फिर दूजा चलिया गया। उत्थे एक लक्ष्मण रेखा, जिस कुली विच कुटिया च रहिंदे सी, आले दुआले लाइन कढ़ दित्ती, ये तो बाहर ना जाई, कोई दुख नहीं होवेगा। सिखो, लक्ष्मण रेखा नूं ना फड़ो, जिहड़ी साडे आले दुआले कढ़ी है उहनूं फड़ो। साडे सतगुरां ने भी रेखा कढ़ी है। ये जिहड़ी रहत है, ये साडे शरीर दे आले दुआले रेखा है, बाउंड्री है, ये हद बंदी है। इनू की लिखे है गुरु ग्रंथ साहब विच, चौगिरद हमारे राम कार, दुख लगे न भाई। ओ लक्ष्मण रेखा है, ये राम रेखा है जिहड़ी सानू गुरमत दती है। इनू असी छड्ड गए। हुण आया डौरू बचाता, मैनू भीख दो, भुख है। माता सीता जी कहते, महापुरखा मैनू हुक्म है कि रेखा तो बाहर नहीं जाना, अंदर आ जा ते भिक्षा ले ले। देखो हुण चतराई, जिन सीता आंदी डौरू वाए, ये कहंदा तैनू हुक्म है कि रेखा तो बाहर नहीं जाना, मैनू मेरे गुरु का हुक्म है किसी गृहस्थी दे घर नहीं बढ़ना, मैं अंदर नहीं आ सकता। बाहरों भिक्षा लैण का हुक्म है, इत्थे भिक्षा देनी है दे, नहीं मैं जाना। वो साधु स्वरूप देख के माता सीता जी कहते नहीं मैं आ जानी। साधु नूं भिक्षक नूं नहीं मोड़ना दरवाजे तो। तुहानूं भी एक बेनती है, कोई भिक्षा लैण आवे, दो ना दो, उन्होंने माड़ा बचन नहीं बोलना। अज के आखो सत, उन्होंने गलत गल नहीं कहनी। बस वो माता सीता जी बाहर आए, भिक्षा तो उन्हें लैनी नहीं सी, ते उन्होंने चक के किन्नी चतराई वरती, कोई जंग नहीं करिया, कोई लड़ाई नहीं, कोई हथियार नहीं। इन्ना चतर
ਇਹ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ। ਕਿਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 1428 ਸਫ਼ੇ ਨੇ, 714 ਪੱਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1430 ਸਫ਼ੇ ਨੇ, 715 ਉਹਦੇ 714 ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤ ਇਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਕੇ ਖੋਸਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਆਉਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮਤੀਏ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ, ਮਿਲ ਕੁਸ਼ਲ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆਏ। ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਓ। ਅਜਖੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਓ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਰਾਲੇ 13 ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਸ ਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਈਸਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ। ਈਸਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਕ ਕੱਢ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਾ ਨੂੰ, ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਈਸਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਅਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ। ਅਸ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੜਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਕੇਤ, ਆਸਕੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੋ ਚੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੁਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੁਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੁਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਖੜਗ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਸ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਈਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਾਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਜਖੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਤੋਕਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਠਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ।
ये सब तुसी पैदा कीते हैं जिन्हें दे धारीए मन मती है। क्यों? गैस स्टेशन उत्थे ही खुलता है जिथे गड्डियां होंदियां, ग्रोसरी का स्टोर उत्थे ही खुलता है जिथे आबादी होंदी है। ये डेरे भी तां खोले हैं जे तुसी जाके मत्थे टेकन लगे हो अज आखो सतनाम, ये तो थोड़ी कृपा हुई है। अज जानते हट जाओ तो तंबू पटले जाणगे, ये साडी कृपा हुई। गुरु ग्रंथ साहब नूं छड्ड के असीं इन्हां दी पूजा शुरू की। सो श्री असकेत जगत के ईशा, ये पता की कढ़ते ने, इन्हां नूं पिछली बाणी स्वादे नहीं लगी, कानड़ा राग पढ़ते ने। गुर मंत्र दे हर कान, कहते गुरु ग्रंथ साहब विच कहा गुरु ओही है जिहड़ा कन्ना विच मंत्र दवे। गुरु ग्रंथ साहब नहीं तो कहे गुर मंत्र दे हर, एक कन्ना विच दन्ने ना मंत्र। जे इन्हां भले मानसां नूं कोई पुछे भी जद पंज प्यारे वाहिगुरू मंत्र दिंदे ने अंबर छका के, वो कहता अंबर छकण दे मूँह च पाउने, वो भी तो कन्ने सुनते हैं। अज के आखो सतनाम, गुरु का मंत्र कन्ना तो बिना सुनिया ही नहीं जा सकता किसी धर्म का भी हो, चाहे वह राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे गौतम है, बुद्ध है, कन्ने सुनगे ना तुहाडा अपने मतलब दियां गल्लां। सो गुरसिख प्यारे हो, तुहाडे नाल विचार चलदी है, मन मत का पसारा असी कराया है। मैं खेती करदा, तुहानूं पता ही है, तुसीं भी करदे सी। कख कोई बीजदा तां नहीं जट, कदे कोई गुली डंडा बीजिया तुसीं, झंझण बीजे है? नहीं नहीं, ये जट की कृपा हुंदी है तां जमदा है। अज के आखो सतनाम, ये उस खेत के मालिक की कृपा है। समय सिर बाहिया नहीं, समय सिर दवाई नहीं पाई, तो झंझण का की, गुली डंडे का की कसूर है? आही हाल साडी कौम नाल होया। साडे लीडरां ने, साडे प्रचारकां ने, जदों ये गुली डंडा जम्मण लगे है ना सिख कौम विच, उदों इहदा ध्यान नहीं दिता, उदों इहदी दवाई नहीं वरती। तुसी बैठे हो सारे खेती करने वाले, हुण जीरियां लाउणियां अपने पंजाब विच, झंझण बीजना नहीं पर जम्मूगा, ते हटूगा किवें? जे कोई 20 दिन तो 30 दिन दे अंदर अंदर स्प्रे कर देवे तां मरूगा। जे 2 महीने बाद पंप चक्की फिरे ना, फिर जट नूं झंझण सत श्री अकाल बुलाऊगा, आ जा फतेह कबूल कर, मैं इत्थे खड़ा है। अज के आखो सतनाम, दवाई का कोई समा हुंदा है। डॉक्टर भी तुहानूं कह दिंदे ने जे तू पहला आ जांदा, समय सिर टीका लग जांदा, तू राजी हो सकदा सी। असीं अणगहली विच रहे, जदों ये गुली डंडा कख कंडा जमे है ना साडी कौम विच, उदों असीं इन्हां दा ध्यान नहीं कीता। हुण कीता है ध्यान। किहड़ी जी गल सच कहना औखा है, सुनना भी औखा है। सुन लो प्यार नाल। हुण ध्यान इन्हां नूं हटाउण दा नहीं है किसी का भी। कोई लीडर है, कोई सरकार है, मैनूं किसी नाल वास्ता नहीं, हटाउण दा नहीं, हुण इन्हां नूं वधाउण दा है। क्यों? जिन्ने वधणगे उन्नियां वोटां वधणगियां। अज के आखो सतनाम, हुण कोई सरकार आ जावे इन्हां नूं घटाउण दी गल नहीं करूगी। डेरियां भी जाके तो मत्थे टेकदे इन्हां दे पैरां ते बड़े बड़े लीडर, क्योंकि उन्हां नूं वोट ते नोट चाहिदा है। उन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह दे साहिबजादे नहीं चाहिदे। अज के आखो सत, उन्हां नूं ज्ञानी मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह नहीं चाहिदा। उत्थे तां वोटां दी गल, हुण नहीं घटने। ये समा लंघ गया गुरसिख प्यारे। इन्हां ने मनमतियां ने कहंदे कन्ना विच मंत्र देण वाला ही गुरु है। जदों सारी बाणी सुनोगे, तुहाडे कन्ने सुनगे, ना नक सुन सकदा है, ना अखां सुन सकदियां, ना मूँह सुन सकदा है। सरवण अर्थ ही कन्ना दा। सो गुरसिख प्यारिओ, तृष्णा वड्डा रोग लगा। क्यों लगे है? वाहिगुरू भुल गया।
ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ? ਮਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਸੀ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਬਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੁੜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੂ। ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 5 ਗੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ। ਸਮਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ। ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਪ ਤਾਪਨ ਕੋ ਮੰਦ ਹੋਤ, ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਬਲੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਧਨੀ ਇੰਨਾ ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਨਾ 4 ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ, ਕਥਾ ਬਾਚ। ਧਨਵੰਤ ਜੀ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਕੋਈ। ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹਦੇ ਆਏ ਸਾਲ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਦੇ ਐ। ਅਜ ਕੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਦਾ ਫੂਕਣਾ, ਗਰਾਇਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਦਾ ਫੂਕਣਾ। ਕਰ ਲੋ ਇਕੱਠੀ ਮਾਇਆ, ਕਰ ਲੋ ਸਿਉਨਾ ਇਕੱਠਾ, ਕਰ ਲੋ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? त्रिकाल द्रव दुख में उपाय रख अंत में, निदान है विरोध को सुमात तात जंत में। कृतांत धाम काम को अलंकृत ही समस्त है, शुभ शुभ निकेत को तथापि त्याग श्रेष्ठ है। शास्त्र का श्लोक है। ये जिहड़ी माया तो असीं सुखी होने वास्ते रब तो लिव टुट गई, ये 3 काल दुख रूप है। त्रिकाल कहिए 3 काल, दरब कहिए धन, मैं कहिए रूप। जिथे मैं पाठ आउंदा गुरु ग्रंथ साहब विच, उथे रूप वाचक है। आरती सुनते हो, गगन मैं थाल आकाश रूपी थाल, उथे आकाश का रूप दसिया। ये 3 काल दुख रूप है भाई। लंघ चुकिया वर्तमान आउण वाला। पुछण वाले ने पुछया कि 3 काल माया दुख रूप क्यों है? नित वरतदी है घटना साडे नाल। उपाय रख अंत में, ये दुखा बिना पैदा ही नहीं हुंदी। अज के आखो सतनाम। जट नूं ये पता है खेती किवें करीदी है, तुहानूं ये पता है जॉब किवें करदे। व्यापारी नूं ये पता है साह सुक्या रहिंदा, कणक दा भाव ना घट जावे। एक तुहानूं वहम होना है कि बाबियां नूं आराम नाल मिलदी हैगा। गल्लां भी करदे सुणी मैं, कहंदे जे चोले आए ना इन्हां नूं आराम नाल मिल जांदी। तुहानूं हथ बन के बेनती है, मेरे नाल चलिओ इंडिया नूं। जे तुसीं हुक्म करोगे टिकट भी मैं ला दूंगा, नाल चलिओ। जिन्हों बहम होवे भी संतां नूं आराम नाल मिलदी है, बस 7वें दिन कशहरा छड्ड के नठोगे। अज के आखो सतनाम। देखो तो सही किसी महापुरुष नाल रह के उहदा जीवन की है। 2 बजे गड़बा खड़का देना, नितनेम ना होया तो रोटी नहीं मिलनी,
गलती माड़ी जी हो गई। संत गुरबचन सिंह जी महाराज खालसा, मेरे कोई कर्म चंगे सी, तुहाडे वांग बैठ के मैं कथा सुनी उन्हां दी। साडे पिंड दे कोल 2 महीने रहिंदे हुंदे सी, 2 महीने, साल दे 2 महीने सी नाभा साहब, जिथे गुरु तेग बहादुर जी का सीस रहा दिल्ली आउण तो। वो साडे सीधे रस्ते साइकिल विच 2 घंटे का भी रस्ता नहीं। गुरसिख प्यारे भट्ठा साहब 13 दिन रहिंदे हुंदे सी। भट्ठा साहब पंगत लगी हुई, एक सिख दे कोल थोड़ा जिहा ज़्यादा रड़िया होया प्रशादा आ गया, सेक लग जाता ना रोटियां नूं। उन्हें की कीता, वो लंगर का प्रशादा तप्पड़ हेठ देता, तप्पड़ हेठ। कहना केड़ा कोई देखदा, तप्पड़ हेठ प्रशादा छक लिया। बड़े महाराज कहते अपने सेवक नूं बुला के लिया। बड़ा खुश भी अज संतां ने बुलाया है मैनू, बैठ के कोल पुछया तेरा पिंड केड़ा है? रेलवे स्टेशन उदों बसां नहीं सी हुंदियां, स्टेशन केड़ा लगदा है? भाई किराया किन्ना क लगदा है? बड़े संतां दी गल है। उन्हें दसता, अपने सेवक नूं कहंदे दे इहनूं किराया। किराया दे के कहंदे अज तो टकसाल विच नहीं बढ़ना, तू लंगर दा प्रशादा तप्पड़ हेठ दवें अज के आखो सद। ये टकसाली कहा लेना ही सिखाला है ना, ना। वो पक्की ईट तुसी कह दिंदे हो सिखाली है, पक्की है, ਉਹਨੂੰ ਇਹ पता है भट्ठे विच किवें पक्की है। टकसाल तो भट्ठे विच इट वांग सिख नूं पका दिंदी सी। कोई दुखी होना वो भी जावे, कोई गल नहीं। इत्थे जिन्हां ने एक दिन भी टकसाल विच नहीं कटिया ना, वो भी फट्टे लाई फिरदे असीं भंडरे भिंडरां वाले टकसाली हैं अज के आखो सद। राड़े साहब का कलेरा नाम का यही हाल है। राड़े साहब जाके अंदर चाहे मत्था नहीं किसी ने टेकिया, नहर नूं लंघ जावे ना मूरे मूरे नूं राड़े साहब दे, वो भी कनेडा विच आके कहूँगा मैं राड़े वालियां दा सेवक है, नहर नूं लंघिया। उन्हां नाल रहना कोई सखाला सी? ये असीं सैन बोर्ड लाई फिरदे हैं गुरसिख प्यारे, बहुत कैड़ा। नड़ जा इथों गुरु के लंगर दे प्रशादे दी तू बेअदबी करे। ये टकसाल का किथे काम है? वो तो ढाल दिंदे सी सिक्के मांग गुरसिख प्यारे। त्रिकाल द्रव दुख में 3 काल, इनू जदों बढ़ाउने हो तुसी पैदा हुंदी है ना माया, ये सुखा नाल तां नहीं हुंदी। किन्ना दुख कटना पैंदा है जॉब करदे किसान नूं, इहदी पैदाइश दुख विचों है। इन्हें पैदा ही जे ज्यादा इकट्ठी करनी है फिर पूछो गुरु ग्रंथ साहब तो, जे बहुती लैनी है ना फिर पापा बाजों होवे नाही ते मोया साथ नहीं। फिर फरेब करना पऊगा, झूठ बोलना पऊगा। कर ली पाप कमा कमा के नाल फिर भी नहीं जानी, पापा बाजों होवे नाही। तो गुरसिख प्यारिओ, जदों इनू असी पैदा करते हैं दुख विच, दूजी आ गई वर्तमान रख, एदी संभाल, वो भी दुख रूप। मैनू खेमा कर दो जे थोड़ा किते घर हुण 5-4 हज़ार डॉलर पिया होने ना थोड़े पिछों किसी का, कथा सुनते सुनते 18 बार सोचोगे किते न्याणे ना छेड़ देण अज के आखो सतनाम। यदी संभाल भी दुख रू। वैनकूवर ते एडमिंटन नूं तुर पे हो गड्डी च, जे 2-4 हज़ार रुपया जेब च ना, 1-1 किलोमीटर बाद हथ लाओगे है भी गिरता नहीं गया। यदी संभाल दुख रूप, यदी पैदाइश दुख रूप, ते संभाल किन्नी दुख रूप है। डांग उत्थे खड़कदी है जिथे हुंदी है अज के आखो सतनाम। डाके कतल उत्थे ही हुंदे ने जिथे पई हुंदी है।
ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ, ਅੰਤ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 300-400 ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹੌਕਾ ਜਾਊਗਾ ਅੱਜ 400 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 50, 50 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਦ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਫੇਰ ਦੇਖਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ, ਇਹਦਾ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ, ਇਹਦਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਦਰਬ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਉਪਾਏ ਰੱਖ ਅੰਤ ਮੈਂ। ਲਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ। ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕੋ ਸਮਾਤ ਤਾਤ ਜੰਤ ਮੈਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੜ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਐਨ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇਖੋ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮਾਤ ਕਹੀਏ ਮਾਂ, ਤਾਤ ਕਹੀਏ ਪਿਤਾ। ਤਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਤਾ, 6 ਅਰਥ ਨੇ ਤਾਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੇਬਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਤ ਪਿਤਾ, ਸੋ ਮਾਤ ਮਾਂ, ਤਾਤ ਪਿਤਾ, ਜੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਂਗ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕੋ ਸਮਾਤ ਤਤ ਜੰਤ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਨਾ, ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਕੀਰ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ। ਪੂੰਝੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਲੇਥਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਥਣ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਐਸਾ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਪੀਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, 5 ਪੁੱਤ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, 6ਵੀਂ ਧੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋ, ਫਕੀਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਫਕੀਰਾ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, औरत ईमान है, पुत्र निशान है। ओ फकीरा क्यों भुलिया फिरदे, खुदा दा बंदा ना हिंदू ना मुसलमान है। जेड़ा रब दा ही बन गया उत्थे जात कित्थे रह गई। ये अपनियां जातां तां है, भुल्लर दे जमण वाला भुल्लर, गिल दे जमण वाला गिल,
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੱਬ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਹੈ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ यही वेद कह रहे हैं। किरतांत धाम काम को अलंकृति समस्त है। ये जेड़ी माया है संसार दे किरतांत, किरत दे आद तो अंत तक। धाम कहिए संसार, ये माया समर्थ है काम नू आद तो अंत तक पूरा करने विच। कई बार देखिया नहीं तुसीं, कोठी तो बना ली, थोड़े जे हाथ तंग हो गया, 6 महीने पलस्तर ही नहीं होया। अजखे आखो सतन। आद तो अंत तक इहदी लोड़ है। ते शुभ अनशुभ नकेत को दलिदी घरां नूं सुंदर बना दिंदी है, इहदे विच गुण है। पर वचन की कीता वेद ने, तथापि त्याग श्रेष्ठ है। इहदा त्याग ही ठीक है। लो तुसीं सियाणे सुनते हो तां इधर जाना पैंदा। त्याग छड्डना नहीं हुंदा। किते ग्रामर पढ़ो ना, पढ़ने कानून है, छित्र खाने पैने। छित्र खाए बिना ग्रामर नहीं आउंदा, ग्रामर पढ़े बिना इहदा अर्थ नहीं आउंदा। गुरमुख प्यारिओ, ग्रामेटिकली की अर्थ ने इस शब्द दे वेद दे? शुभ अनशुभ नकेत को तथापि त्याग। त्याग छड्डना नहीं होंदा। माया छड्डनी त्याग नहीं। गुस्सा ना करो, शराब छड्डनी त्याग नहीं है, घर बार छड्डना त्याग नहीं है। त्याग दे तां अर्थ अमोलक ने। कोई छड्ड देना त्याग नहीं, उस छड्डे नूं भुल जाना त्याग है। अज के आखो सत। रिनंसिएशन, जो तू छड्डे है ओनू भुल, ये औखा है। और साडे गुरमुख प्यारे इमारत वास्ते पर्चियां कट रहे ने। $100 तो छड्डता, रोटी खांदे नूं भी याद आई जाना जिवें 100 दे के आए। कादा छड्डिया तो बुरकी तो लंघदी नहीं उहदे याद बिना। एक कोई बाबा करदा सी कथा, किते साडे बाबिਆਂ ਨੂੰ एक हुण होर बीमारी हो गई, वो अपनियां ही गल्लां सुणाउण लग जांदे ने। साडे बाबे ने यह करता, साडे बाबे ने पुत दे दिता, ट्रक चलाते। मैं बेनती करदा नुकता चीनी ना समझिओ, सब महापुरुष सत्कारयोग होए ने। आपां तां उन्हां दे चरनां दी धूड़ है, पर हुण ओहदे लड़ लग जाओ जेड़ा सामने कोल बैठा है बाबा। अज के आखो सत। हुण ओहदी गल करो जेड़ा बाबा हाजिर नाजिर है, ओहदी गल करिए। वो बाबा कथा करदा अपनी सुनाउण लग गया। कहना साध संगत जी मैनू एवं ना समझो, साध बने 500 बीघे जमीन नूं लत मार के साध बने। 5 लाख की कोठी नूं लत मार के आए। बैंक में एफडियां पईयां सी, उन्होंने लत मार के साध बने। एक सियाणा जिहा बजुर्ग खड़ा हो गया, कहना महापुरख तू लत तां मारी, तैनू मारनी नहीं आई। बाबे दे पै गईयां तिउड़ियां। कहता जाओ बुढ़िया मेरे पिंड देख के आ, 500 बीघे जमीन है कि नहीं, मेरी कोठी देख के आ, बैंक बैलेंस पुछ के आ। वो बजुर्ग कहना मैं तो मनदा भी सब कुछ हैगा, मैं ये भी मनदा तू लत मारी पर तेनू मारनी नहीं आई। वो संत कहता कसर की रहेगी, ये अपने विच कसर होना। वो बजुर्ग कहता कसर ये रहेगी तू उन्होंने दे लत मारी, वो तेरी लत नाले चिंबड़ गए। अज आखो सतनाम, घड़ीसी तो तू नाल फिरदा, लत मारी का की फायदा होया? लत मार के तो अगले नूं परे करीदा हुंदा, तू तो नाले घड़ीसी फिरदा। उन्हें छड्ड सब कुछ दिता,
पर जो कोई छड्डिया सी ओदी याद नहीं भुली। क्षमा नहीं ना साडा सबजैक्ट है। छड्डिया गुरु गोबिंद सिंह ने भी उही है जो 9 गुरुआं ने छड्डिया। जे डुंगियाई च उतरों, पर 10वें पातशाह ने छड्डण तो बाद त्याग की अपने आप नूं भी कह दिता, हुण तुसीं गुरु ते मैं चेला, मैनू छकाओ। ये सी त्याग अपने आप दा, अपने आप दा त्याग। क्यों अमृत छके अपना सबजैक्ट तो है नहीं। जे उदा ही अंबर छका के खालसा तैयार कर देंदे तो गुरु नानक देव ने तो बाबे लहणा जी नूं गुरु मनी। गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी नूं गुरु मने। ते कला गुरुए मनदे नहीं, नहीं मैनू अमृत भी छकाओ। क्यों छकिया? जफर साहब ने एक बचन लिखे, बड़े सूफी कवि सी, कि खंडरात बता देते हैं इमारत आलीशान थी। टट्ठे हुए इट्टा रोड़े सानू दस दंदे ने मकान बड़ा सोहना सी। गुरु गोबिंद सिंह जी का त्याग कि मैं उत्थे पुजने मेरे टट्ठे होए दे कचरा भी ना किसी नूं दिखे। अज के आखो सतनाम, रोड़े भी ना दिखण मकान। ये नाम त्याग दा है, छड़ देना त्याग नहीं। बहुत औखा। इनू छड्डना नहीं माया नू, ये बिना काम नहीं चलना। 10 गुरुआं ने नहीं छड्डी। कबीर साहब ने छड्डी, नित खड्डी बुणदे सी। रविदास महाराज ने छड्डी, नित जुतियां गंढ के रोजगार करते सी। धल्ले ने छड्डी, हल पाउंदे सी नित। नामदेव ने छड्डी माया, वो छड्डनी नहीं है, त्याग। इत्थे थोड़े समुद्री इलाके ने ना, कदे तुसी बेड़ी नूं 80 ते 82 ते 70 ते सड़क ते चलदा देखिया? बोट, नौका, बेड़ी। कदे तुसी बेड़ी नूं सड़क ते चलदा नहीं देखोगे। जद चलू पानी ते चलूगी ना। पर यह भी तो याद रखियो, जद डुबूगी डुबूगी भी पानी च। अज के को सतनाम, जे वो सड़क ते चलदी नहीं, सड़क ते डुबदी भी नहीं तुसी देखी होनी। ये शरीर रूपी बेड़ा माया दे पानी बिना चलना नहीं। कई है कि महापुरख कहते असी माया नहीं लेंदे, उन्हों का भी तरीका है, आपको अपना तरीका है। वो कह देने और फेर के अगे रखिए, आ घुमा के अगे रखिए, इधर पिछे नूं लिफाफा फड़ा दी। अज के आखो सतनाम। जिन्होंने पूछे भी तेरी गड्डी च टोबे का पानी पैंदा, माया का नहीं तेल पैंदा। ये जिहड़े सूट बूट पाई फिरदे, टिन्नो पाल वाले चोले, ये माया ते बिना बन गए। चलो अखीरी गल सुन लो, समा 6 मिनट रहिंदा। किस माया नूं छड्डोगे तुसी? ये शरीर भी माया है। अज के आखो सत। रोटी भी माया है, पानी भी माया है, अग भी माया है। माया दे अर्थ पता है की है गुरु ग्रंथ साहब? एक अकाल पुरख तो बिना जो दूजी चीज दिखती है, ये सारी माया है। थोड़े डालरे माया नहीं, थोड़ी जमीन भी माया है, थोड़ी कार भी माया है, थोड़े पुत्र धी भी माया है, पशु भी माया है। किथे छड्डोगे गुरसिख प्यारे? हाँ, इनू जीवंदे जीवंदे छड्ड दो, बहुत चंगी गल है। ਉਹਦਾ नाम है त्याग। वाहिगुरु दे प्यारियां दी की निशानी है सुखमनी साहब विच? गुरु दे दास। देखो निशानी नित पढ़ते हो तुसी। जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। रामदास कह लो, गुरु दा दास कह लो। हुण उहदी निशानी सुनो अगे की है। निशानी ऐसी मोलक दसी है, सागल संग आत्म उदास। सुखमनी साहब है नित पढ़दे। वो रहिंदा सारियां दे विच है,
इत्थे सवार के पढ़िओ सुखमनी नूं, मम्मा इत्थे मुक्ता है। जिथे आत्म विच मम्मा मुक्ता आ जावे उथे आत्म दे अर्थ ने मन। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहीयत है सूरा। आत्म जिणे सगल वस्तां के जग का सदगुर। इत्थे भी मम्मा मुक्त है। मम्मा मुक्ता आ गया, आत्म हो गया मन। ते कौन है गुरु दा दास? सगल संग सारियां दे विच रहिंदा है, आत्म उदास ओदा मन सब तो ही जुदा है। अज के आखो सब ये है त्याग। छड़ देना त्याग नहीं, विच रह के ओदी याद नूं भुलना, ओदी पकड़ विच नहीं आउणा। ताही कमल फुल गुरबाणी विच जगह ले गया। पानी विचों जमदा है, पानी विच खड़ा है, पानियों ओदी खुराक है। पर 10 दिन झड़ी लगी रवे, कमल अपने पत्ते नूं गिला नहीं होण दिंदा। तुसी स्प्रे पंप लेके भी कमल फुल ते स्प्रे करो ना, पत्ती ते पानी नहीं टिकूगा, रहना ते विचे पानी दे। ਇਹਦਾ नाम है त्याग। ਉਹਨੇ पानी छड्डिया नहीं, पानी दा त्याग कीता। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई। मुरगाइयां तो देखिया ही हैं, औखे जे ना होए कई ने तो छकियां भी होनियां। अज के आखो सतनाम, देखण तक असीं किथे रहने। 24 घंटे पानी विच रहिंदी है, डुबकियां मारदी है, उत्थे अपने रोजी लंदी है। कदे फड़ के देख लो दा खंभ सुके दा सुका। ये है सिख दा जीवन। सारी जिंदगी माया विच रही, पर माया तैनू लवेड़ ना सके। अज के आखो सत, ये चिक्कड़ विच ना पै जी, ये तो कमल है। सो गुरसिख प्यारे त्याग तथापि त्याग। उस माया ने हुक्म वर्ताता, लिव छुट गई। लगी तृष्णा क्यों वर्ताया हुक्म। पंजाबी बोलन लगे, धीओ भैणो सुनियो प्यार नाल। गुआंढड़ दी गल साडी नूं तां सुनूगी जे अपनी सस याद नहीं है। अज के आखो सतनाम, जिन्हों अपनी सस याद है गुआंढण नूं कहेगी चुप करके अपने घर नूं जा। असीस माया है वाहिगुरू दी गुआंढण है, इहदी गल तां सुनदे हैं मालक याद नहीं रहा। लिव छुड़की लगी तृष्णा, वो भुल गए। इन्हें अमर कहिए हुक्म माया अमर वरताया। अमर इत्थे हुक्म दा वाचक है। इन्हें अपना हुक्म वरताता कि मैं ही तेरा साथी है, मैं ही मालिक है, मेरे नाले तेरी शोभा है भी कौन वड्डा माया वड्डिया। 4 पैसे आ गए, सत श्री अकाल होण लग पई। 4 पैसे चले गए, सका भाई भी आउण नूं नेड़े तैयार नहीं। पर इत्थे कौन वड्डा जिथे तुसी बैठे हो, सोई वड्डा जिन राम लिव लाई। ये माया दी शोभा किन्नी कह गुरसिख प्यारे नूं वरतो, छड्डना नहीं। किन्नी क शोभा है दी। इस युग में शोभा नाम की, विण नावे शोभ न होए। ए माया की शोभा 4 दिहाड़े जांदी बिलम ना। बिलम नाम बिलंब देर दा है। जदों इन्हें सारी जिंदगी आपां कट्ठी करदे मर गए, इन्हें छड्डण लगी ने 1 सेकंड लाउणा है। अज के आखो सत। सतगुर पातशाह बख्शिश करन। तृष्णा दा सबजैक्ट चल रहा है। यही है जो रब नूं भुलाउंदी है। ਇਹਦਾ हुक्म मनना शुरू करता। क्यों? दात प्यारी विसरिया दाता। डालर पुत धीआं कोठी कार चंगी लगन लग पई, पर जिन्हें दतियां वो भुलदा जांदा। मेहर करन सतगुर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रहना सिखो छड्डना नहीं। ताई गुरमत ने मोहर ला दी है कि सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। बाबे नानक ने थानू की मोहर लाई है? सियाने सुनते हो, नाम जपना 1 नंबर ते नहीं है सिख धर्म विच। ये तो साडा लाना थानू कही जाता है ना, 1 नंबर ते नहीं है।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਦਸਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੀਰੀ ਦੀ ਗਡਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਸਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਥਾ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਫਲੀ ਕਰਨ। ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।